So stress strain relation means what here we discuss is strain relation for any material is obtained by conducting tension tests, or you can consider compression test also. Here tension tests in the laboratories on a standard specimen means UTM machine used. So different materials here, materials behave differently, and their behavior in tension and in compression differ slightly. You're getting my points? Okay. So now, first is the mild steel. You know mild steel? Mild steel means the carbon content. Means here the dead mild steel, low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel. Dead mild steel means basically carbon content less than 0.1%. Okay. Low carbon steel, carbon content less than 0.3%. Means 0.15 to 0.3% means low carbon steel. And medium carbon steel, 0.3 to 0.6% medium carbon steel means 0.26%. And high carbon steel up to 1.5%. Means carbon content is the up to 1.5%. But in modern cases, like the Callister book, he considered uh, steel classification up to 2.14% carbon. That is called steel. Up to 2.14%. That is called steel. Up to 2.14% carbon is called steel. Okay. So here mild steel basically the means carbon content less than 0.3%. 0.15%, depends on the conditions. So figure shows the diagram, basically diagram shows the tensile test specimen uh, in the UT machines for the mild steel, for the mild steel. So its ends are gripped thoroughly into UTM machine, means ends are gripped into UTM machine. Ultimate means universal testing machine. So extensometer is a device that measures the extension in the component. So extensometer is fitted to test the specimen, which measures extension over the length L1 as shown in the figure. So length over which extension is measured is called gauge length. It's remember and getting points. Always remember that length over which extension is measured is called gauge length. The load is applied gradually at a regular interval of loads extension is measured. So after certain load extension increases at faster rate and capacity of extensometer to measure extension comes to an end, and hence it is removed before this stage is reached and extension is measured from the scale of universal testing machine. So just you see the diagram basically. We want to discuss the diagram. Load is increased gradually till the specimen breaks. Okay, load is gradually increased till the specimen breaks. So here see the basically this break in cup and cone shape. Upper portion is cup and lower portion is cone shape. Always this component were break in the cup and cone shape. So this is the gauge length. This is the length L1 and L2. This is the points here L1 and L2, and this ends. This ends length L2. So here he write here basically length L1 and L2 like the gauge length here. He this is the by gauge length of extensometer L1 and grip length of specimen. So this is the gauge length. Okay, this is the gauge length and this is Time. the grip length.
ये यहाँ पे दिस इज द डायग्राम फॉर स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम। ठीक है, ये तो आपको ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। आई थिंक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे A B C D पॉइंट है। ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। बी क्या है, लास्ट लिमिट है। और सी क्या अपर यील्ड पॉइंट है। डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है। और ई क्या अल्टीमेट पॉइंट है। हम याद आ रही है, आ रहे हैं। एफ क्या फ्रैक्चर है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स है। और बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनरली माइल्ड स्टील कंपाउंड लेते हैं, उसको हमें क्या है, यूटीएम मशीन होती है, उसमें यूटीएम मशीन पे कंपोनेंट ऐसे लगाते हैं। दिस इज हमारी कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, उसको यूटीएम मशीन पे लगाते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, एक यहाँ सपोर्ट होता है, और ऊपर से यहाँ पे लगाते हैं फोर्स, जैसे टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल फोर्स। मशीन लगाती है, हम लगाते हैं। तो मशीन क्या करेगी, इसको ऊपर से खींचेगी, इधर खींचेगी, तो ये ब्रेक होगा, पतला सा होगा, यहाँ से कप एंड कोन शेप में ब्रेक होगा। इसके एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये वही दिखाता है कि इसलिए अगर आप लोड लगाते हैं, सपोज स्टार्टिंग में लोड लगाया आपने, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले यहाँ पे, एंगल थीटा यहाँ पे, थीटा एंगल हो गया, ठीक बेटा। और ये आप एंगल निकालेंगे टेन थीटा, मीन्स टेन थीटा is equal to this point is m, means am here, okay, am upon om, am upon om is the basically यहाँ पे आप निकाला हुआ टेन थीटा। और ये टेन थीटा जो आपको होता है, इसको हम निकालते हैं बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज यहाँ पे सिग्मा पार्टिकुलर स्ट्रेन पर, सब हमारे यहाँ पे डी सिग्मा, यहाँ पे ये डी सिग्मा अपॉन डी ई लेते हैं यहाँ पे। ये डिपेंड करता है सिग्मा पानी, मतलब ये आपका ओवरऑल कांस्टेंट आएगा, दैट इज दिस इज tan थीटा इक्वल टू, आप इसको कांस्टेंट मान लेंगे, ई आएगा। ठीक है, यही अपने पता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू द, जस्ट 1 मिनट, stress is directly proportional to the strain according to the Hooke's law। यहाँ पे आपकी स्ट्रेन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इनटू स्मॉल ई। ई इज जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो यहाँ पे आपको बताएगा ई सिग्मा अपॉन ई, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ फॉलो करता है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यहाँ पे डी सिग्मा पे डी सिग्मा, मतलब दैट इज कॉल्ड tan थीटा। ओके, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। यहाँ पे थीटा मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो tan थीटा इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे इस डायग्राम ले रहे हैं, ये जो एरिया आपका आएगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया को लेंगे, मान मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है बी इलास्टिक पॉइंट। अब इलास्टिक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये लिया अपने इलास्टिक पॉइंट लिया, और ये पॉइंट आपको यहाँ पे एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एन पॉइंट लिया, एन लिया, सिमिलरली tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू बी एन अपॉन ओ एन, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट डी सिग्मा वन, डी सिग्मा ई में पाएगा, ठीक है। ये एंगल पर थीटा वन थीटा टू आएगा सपोज, बट ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो उसका ये कहता है कि जैसे जैसे आपने लोड लगाया यहाँ पे, स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है, जैसे आपका लीनियर रिलेशनशिप। आप देखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, पढ़ा होगा आपने इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी हो गया, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, और वही यहाँ फॉलो हो रही है कि सिग्मा इज इक्वल टू ई आता है यहाँ पे। अब देखिए सिग्मा क्या वाई है ना, मीन्स यहाँ वाई क्या है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ एम क्या आपका है स्लोप है, एक्स क्या है ई है यहाँ पे, और कांस्टेंट मान यहाँ पे जीरो वाला, यहाँ पे सुपर वाला कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब ये जो बीच में आती है सी आ रहा है, ये सी बोलते हैं यहाँ पे, ये कुछ है नहीं यहाँ पे इस केस में। मीन्स एम क्या tan थीटा, tan थीटा एम, एम क्या ई, इसको आप क्या बोलेंगे ई इनटू ई बोलते हैं यहाँ पे। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन रिलेशन आता है यहाँ पे। तो ये जैसे जैसे आप लोड लगाते जाएंगे यहाँ पे, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी, लेकिन हुक्स लॉ फॉलो होगा यहाँ पे पॉइंट बी तक होगा, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट तक यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो आपका यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो गया, इस पॉइंट तक फॉलो होगा, ठीक है। और हुक्स लॉ फॉलो होगा तो आप यहाँ तक फॉलो करेंगे, देन आफ्टर आप जैसे जैसे फिर आप लोड लगाएंगे, फिर लोड लगाएंगे आप, लोड लगाया और लोड हटाएंगे, तो लोड लगाया तो आपने क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब ये स्ट्रेंथ जो थी यहाँ पे, पहले पूरा मुझे समझा दो,
समझाने के बाद कोई दिक्कत आएगी, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। प्लीज पहले मैं सुन लीजिए, प्लीज प्लीज हियर केयरफुली। तो नाउ लोड इज अप्लाइंग, फर्दर लोड अप्लाई, आप लोड और अप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका लोड अब यहाँ कर्व शेप में आएगा। थोड़ा सा ये कर्व शेप में आएगा, मतलब यहाँ पे आपका जो इक्वेशन चेंज होगा, वाई इक्वल एम एस प्लस सी नहीं रहेगा। अब ये पैराबोलिक शेप में कहीं ना कहीं आएगा, मतलब हल्का सा पैराबोलिक शेप में या कोई और शेप में आएगा, बट ये वाई इक्वल एम एस प्लस सी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, तो ये एक चीज होगा, ये जो एरिया है, एरिया और कहेंगे ट्रेंगल, ट्रेंगल ओ एन बी, ठीक है। ये ओ एन बी ट्रेंगल लेंगे, इस एरिया का जो ट्रेंगल पूरा एरिया आएगा, ट्रेंगल ओ एन बी, ये जो आपका आएगा रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिलियंस, बोलते हैं LIENC, मैक्सिमम स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी तो इलास्टिक लिमिट कह रहा है, एक होता अप टू इलास्टिक लिमिट, एक होता विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे बोला विद इन इलास्टिक लिमिट का, जो चीज विद इन इलास्टिक बोल रहा है अभी तक है, तो वो आपके रेजिलियंस है। रेजिलियंस क्या है? एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट के अंदर होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर इससे बाहर होगा तो फिर कुछ और आ जाएगा, फिर टफनेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया रेड वाला आ रहा है, रेड एरिया इज कॉल्ड रेजिलियंस। यहाँ से यहाँ तक आपका रेजिलियंस रहेगा। अब टोटल एरिया क्या होगा? सपोज हमारे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सपोज टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या है? ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट और ये एरिया, टोटल एरिया जो जितना आपका आएगा बीता यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो आपका एरिया टोटल आएगा, दैट दिस एरिया इज कॉल्ड टफनेस, इसको बोलते हैं टफनेस। अगर आपको क्वेश्चन पूछे एरिया अंडर स्ट्रेस डायग्राम, होल एरिया अंडर स्ट्रेस डायग्राम, दैट इज कॉल्ड टफनेस। क्या बोलेंगे? टफनेस, मतलब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट कह सकते हैं इसको आप, अप टू इलास्टिक एंड प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे। तो इलास्टिक लिमिट में क्या हुआ? अप टू, मतलब इलास्टिक लिमिट तक जा सकता है। अब इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पे ओ से लेके बी तक, ए तक गए, फिर बी पर गए, ए तक गए, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट आया, हुक्स लॉ ओ से लेके ए तक फॉलो हुआ। अब आगे ए से लेके बी तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का कर्व मानते हैं, लेकिन उसको स्टिल मानते हैं। अब जैसे बी से सी पे आएंगे तो आपका कर्व आएगा, कर्व आएगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस सी पॉइंट पहुंचते पहुंचते, मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आप जो सी पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, इस सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते आते आते यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये कुछ कर्व आएगा। अब ये जो मतलब यहाँ तो था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी ऐसे, और थोड़ा से मुड़ आ गया, ऐसे ऐसे आया। अब ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यहाँ से चेंज हुआ, तो ये तो थोड़ा शेप बदलेगी यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? सी पॉइंट पहुंचेंगे, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो भी जरूरत पड़ेगी परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए, स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इस पॉइंट पे क्या है? सी पॉइंट इज द अपर यील्ड पॉइंट, डी पॉइंट इज द लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट एंड अपर यील्ड पॉइंट, हियर इज द अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट मींस क्या? स्ट्रेस, पहले बोलते हो, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड अपर, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ जनरली क्या होता है? ये क्योंकि ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही हल्का होता है, मतलब लगभग दोनों पॉइंट सेम ही होते हैं, मतलब लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए, फर्क करने के लिए इसको दिखाया जाता है कि भाई ऐसा होता है। स्ट्रेन जरूरी है उसको पूरा करने के लिए, स्ट्रेन इसकी बढ़ती जा रही है, तो लोअर यील्ड पॉइंट मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेन बढ़ रही है, बट स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रही है, कम हो रही है यहाँ पे। अब फिर हमने क्या, फिर इस पर लोड लगा दिया अपने, तो अब फिर लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने के बाद फिर वो ऐसा लगाएंगे, यहीं पे शुरू होता है वो नेकिंग फॉर्मेशन। नेकिंग फॉर्मेशन ये कहता है कि जो मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है, बेसिकली यहाँ पे ये जो कंपोनेंट, अगर मैं कुछ तो मिटाता हूँ पहले, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। नेक फॉर्मेशन जो होता है उसकी शेप होती है कंपोनेंट की, ठीक है, दिखाता हूँ। देखिए, सर दिस इज नेक फॉर्मेशन, जस्ट मिनट, दिस इज द नेक फॉर्मेशन यहाँ बनता है ये इस तरह से, ठीक है। कंपोनेंट आपका गेजन होती है, ये इस तरह से टूटेगा, बीच में आके नेक फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो वो पतला मतलब पोर्शन एरिया उसका कम होता था, उसकी लेंथ उसकी जो है बेटा बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे सवाल ले लेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा वो सब ले लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्या है कि नेक फॉर्मेशन इसका जो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब मैंने कहा ये पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम यील्ड पॉइंट मिलेगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मतलब स्ट्रेस मिलती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे देखेंगे ब्रेक पॉइंट, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन होता जाएगा और फिर कंपोनेंट आपका कप एंड कोन शेप में ब्रेक होता जाएगा यहाँ पे। तो अब ये ब्रेक होता जाएगा, फिर अल्टीमेटली एक फ्रैक्चर पॉइंट एम मिल जाएगा और आपको कंपोनेंट यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, कप एंड कोन शेप में हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ अब पे ब्रेक हो जाएगा ना ये पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो मैं दिखाया ना कुछ शेप है, इस शेप में ये ब्रेक होगा, ऐसे देखो कप एंड कोन शेप में, नीचे वाला आपका कोन होगा, हाँ ऊपर वाला कप बनता है, इस शेप में बताइए, हाँ मैंने हाँ। दिखाया टेस्ट इमेज में, ये ब्रेक करता है यहाँ पे, याद रखिए इसी शेप में ब्रेक है, जैसे कि ये डक्टाइल माइलस्टीन है और ये डक्टाइल कंपोनेंट है, ये कप एंड कोन शेप में ब्रेक होता यहाँ पे है, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। आगे देखते हैं।